سب کو سلام۔ سب سے پہلے میں اپنے خداوند سے اور اس کے بعد پر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج اس عظیم دن کے لیے اور اس عظیم گھڑی کے لیے، اور اس سے پہلے ان لوگوں کے لیے بھی جو چڑا والا میں مسئلہ بنا، سب کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خدا ان کو پھر سے اپنے گھر دے، پھر سے وہی چرچز کا کام ہو۔ تو یہ ہم سب کی دعا ہے، آمین۔ تو آج میرے عزیزوں ہم خدا کے کلام مقدس میں سے یوحنا کا پہلا عام خط، یعنی اس خدا کے بندہ نے 3 خط لکھے ہیں، اور یوحنا کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے خدا کی بخشش۔ کیا لفظ کا مطلب ہے؟ وہ ہے خدا کی بخشش۔ تو اس نے 3 خط لکھے ہیں، اور آج ہم سیکھیں گے اس کا 5 باب، یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 5 باب، اور اس کی 16 آیت میں سے 18 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یعنی آج ہم کچھ یہ سیکھیں گے کہ خدا کا گناہ کیا ہے اور انسان جو گناہ کرتا ہے وہ کیا ہے، یعنی جو خدا کا گناہ کرتا ہے اس کی موت ہے۔ تو خدا کے کلام مقدس میں سے میں چاہوں گا ہم پاری صاحب کے ساتھ مل کر پڑھیں گے 16 آیت سے 18 آیت تک۔ آئیے جی کلام خدا میں سے جو آج خدا ہمارے لیے کلام ہمیں عطا کرتا ہے، ایک پھر یوحنا کا پہلا خط اس کا 5 باب اور اس کی 16 آیت کو اپنی رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا۔ انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو۔ گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا۔ کلام خدا کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو میرے عزیزوں خدا کے کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھا، اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے، ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ کیا ہو؟ موت ہو۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جب ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں اور دل کرتا کہ ہم اس کو مار دیں، اس کو گولی مار دیں یا اس کو دنیا سے مٹا دیں، لیکن میرے عزیزوں خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس کا نتیجہ یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اور بہت ساری گواہ بھی بن جاتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ کام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ موت ہے۔ لیکن خدا کا بندہ یوحنا ہمیں سکھاتا ہے اس خط کے وسیلہ سے کہ خدا اس کے وسیلہ سے، یعنی اگر اس کا نتیجہ موت ہے، اگر ہم دعا کریں تو خدا اس کے وسیلہ سے اس کو کیا بخش سکتا ہے؟ زندگی بھی بخش سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا بندہ یوحنا یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ اگر ہم دعا کریں، یعنی کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے خادم جب دعا کرتے ہیں تو بہت ساروں کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، اور اختیار ہے خدا کے خادم کو کہ وہ دوسروں کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں خدا کا بندہ یوحنا بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ موت اس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے کہ خدا اس کے وسیلہ اس کو کیا بخشے گا؟ زندگی بخشے گا۔ ہاللیلویا۔ زندگی بخشے گا انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا
जिस का नतीजा मौत हो, गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है। हालेलुया। किसी को याद है जिसका नतीजा मौत है? ऐसा गुनाह कौन सा है? वो गुनाह जो खुदा के साथ झूठ बोलते हैं, खुदा के साथ कमिटमेंट कर उसके साथ झूठ बोलते हैं। एक वाकया आपको याद होगा, हननिया और सफीरा का। उन्होंने खुदा के रूह कुद्दस के साथ क्या बोला था? झूठ बोला था। यानी वो भी उन्होंने ऐसा गुनाह किया कमिटमेंट करके खुदा के साथ, और बाद में उनकी क्या हुई? मौत हो गई। लेकिन मेरे असीसों, खुदा की कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसकी बाबत दुआ करने को मैं नहीं कहता। तू हर तरह की नाराज़गी, गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं है। ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं है। वो क्या है? वो भी हम सीखते हैं। हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता। खुदा से पैदा होना का क्या मतलब है? कि खुदा का कलाम जो हमें धोता है, खुदा का कलाम जो हमें निचोड़ता है, खुदा का कलाम जो हमें साफ करता है, रूह और पानी यानी खुदा जो हम बपतिस्मा लेते हैं और नए सिरे से एक पैदा होते हैं, तो खुदा के कलाम मुकद्दस में खुदा का बंदा सिखाता है कि हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, वो गुनाह नहीं करता। इसका मतलब क्या है? कि जिसके दिल के अंदर खुदा का खौफ, जिसके दिल के अंदर खुदा बसा हुआ है, जिसके अंदर खुदा के कलाम की तरबियत है, जिसके अंदर खुदा के कलाम की बातें हैं, जिसके अंदर खुदा के कलाम का बीज बोया गया है, वो गुनाह के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालेलुया। तो खुदा कहता है कि जो हम जानते हैं कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि खुदा उसकी हिफाजत करता है। उसकी क्या करता है? हिफाजत करता है। जो खुदा से पैदा हुआ है। आगे आपको बताते हैं कि पैदा लफ्ज यानी किस तरीके से है, और जो खुदा से पैदा हुआ है वो शरीर, और वो शरीर उससे छूने नहीं पाता। यानी जो खुदा से है, जो खुदावंद से मोहब्बत रखता है, खुदा के कलाम पर अमल करता है, खुदा के कलाम की बातों को अपने दिल में रखता है, खुदा के कलाम की राह पर चलता है, और इस तरबियत खुदा के कलाम में लिखा है, जो इस तरबियत को रद्द करने वाला अपनी ही जान का दुश्मन है। तरबियत को रद्द करने वाला यानी नाफरमानी, खुदा के कलाम की बातों को नाफरमानी के तौर पर सुनता है, अमल नहीं करता और पीठ पीछे फेंक देता है, तो खुदा का कलाम सिखाता है तरबियत को रद्द करने वाला अपनी ही जान का दुश्मन है। मेरे असीसों, आए देखते हैं किस तरीके से पैदा, यानी तीसरा बाब और इसकी 9 आयत में से, यानी जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कभी कर ही नहीं सकता। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 9 आयत से, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। यानी मेरे अजीजों, तुख्म लफ्ज का मतलब किसी को, तुख्म वो है, यानी इसका लफ्जी मतलब है बीज बखेरना, बीज डालना।
बीज बिखेरना, और कौन सा बीज है? वो खुदा का कलाम है, वो खुदावंद की बातें हैं। तो खुदा का बंदा यूहन्ना इस कलाम मुकद्दस में सिखाता है कि जो खुदा से पैदा हुए हैं, यानी ये कलाम की बातें, ये रूहानी बातें, मसीह के मुंह के अल्फाज जिन जिन जिंदगी के अंदर है, वो कभी खुदा का गुनाह नहीं कर सकता। हालेलुया। वो कभी, यानी तुखम लफ्ज़ है कि वो मसीह से पैदा हुआ है, यानी मसीह का खून उसके अंदर है, और मसीह की बातें, मसीह का कलाम, मसीह का जो उसने हमें सिखाया, क्या सिखाया? मोहब्बत, सुलह, सलामती का शहजादा। हमें ये नहीं सिखाया कि मारा मारी, बल्कि हमारे खुदा ने सिखाया दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, सुलह और सलामती का शहजादा मैं हूं। हालेलुया। मेरे असीसों, मैं रात को देख रहा था कि फेसबुक पर वो छड़ा वाला वाकया, लोग रो रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने घरों के लिए रो रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे हमें घरों का फिक्र नहीं है, हमें अपनी चीजों का फिक्र नहीं है, हमें फिक्र अपनी हैकल का, हमें चर्च का, जिन्होंने इन किताबों को जलाया, अंजीले मुकद्दस को जलाया, उन घरों को जलाया, उन सलीबों को जलाया, हमें उन चीजों का फिक्र है, हमें उन खुदा के घर का। पास लोग ऐसे थे जिनके अंदर वाकई खुदा बोल रहा था, खुदा बोल रहा था। कुछ लोग अपनी चीजों के लिए रो रहे थे, वो भी सही है, जिसका घर उछड़ जाए उसको पता होता है। लेकिन कुछ मैंने ऐसे सुने लोग कहते हैं हमें घरों की परवाह नहीं है, हमें चीजों की परवाह नहीं है, हमें इस बात का दुख है कि हमारी सलीब को गिराया गया, हमारे खुदा के कलाम मुकद्दस, यानी वो कलाम जिसके वसीला से आज हम सारे यहाँ पर बैठे हैं, सारी जिंदगियां बैठी हैं, उसको जलाया गया। हमें इस बात का दुख है, हम उस बात से परेशान हैं, हम उस बात का इजाला करते हैं। और मेरे अजीजों, आज हमें भी इस बात का इजाला करना चाहिए, हमें भी इस बात को देखना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन मेरे अजीजों, जो लोग कहते हैं ऐसा किया, लेकिन खुदा का बंदा यूहन्ना सिखाता है कि जिसके तुखम में, यानी जो मसीह से पैदा हुआ है, वो कभी ऐसी बात नहीं कर सकता, उसके मुंह से मोहब्बत के अल्फाज निकलेंगे। हालेलुया। उसके मुंह से क्या निकलेंगे? मोहब्बत के अल्फाज। तो मेरे अजीजों, क्या लिखा है? क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। क्या रहता है? बना रहता है, यानी खुदा का कलाम बीज बोना, यानी इसका मतलब है बीज डालना, बीज बिखेरना, और वो बीज कोई और नहीं है। मैं रूहानी एक कलाम की बात करूं, वो बीज ये है जो आपको हर संडे हर जगह पर खुदा का कलाम सुनाया जाता है, और जिसकी जिंदगी में ये बीज है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए जोर डालता हूं। उसको मेरे अजीजों किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि लिखता है, कहता है यूहन्ना, कहता है बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो किससे है? खुदा से पैदा हुआ है। वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर फिर भी मुसीबत परेशानी आ जाए तो उसका हल यहूदा का खत, यहूदा का आम खत, उसका पहला बाब 24 आयत में से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। अगर फिर भी ऐसा हो तो लिखा है, आखिरी वाला पढ़ेंगे, लिखा है आप जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है। गौर से सुने, आप जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा, आप जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है, और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके
यीशु। वो कौन है? यीशु मसीह। लिखा हुआ है अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है। यानी बहुत सारे लोग अभी भी ठोकरों के अंदर है, डूबे हुए। तो खुदा का बंदा सिखाता है कि अब भी जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है वो कौन है? यानी ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल में कमाल खुशी के साथ बेऐब खड़ा कर सकता है। कौन खड़ा कर सकता है? बोले हैं, बुलंद आवाज से बोले, जोर से बोले, यीशु मसीह। कौन खड़ा कर सकता है? मेरा और आपका नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह खड़ा कर सकता है। और उस खुदाए वाहद का जो हमारा क्या है? मुनज्जी है। हमारा क्या है? मुनज्जी है। लिखा हुआ है हमारा मुनज्जी है। जलाल और अज़मत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जैसा अज़ल से है अब भी हो, अब्दुल अबाद होता रहे। आमीन, हालेलुया। वो कहता है हमारे खुदा का जो हमारा मुनज्जी है उसका जलाल, उसकी अज़मत, उसकी सल्तनत, उसका इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जैसा अज़ल से है, अज़ल से यानी शुरू से, जैसा अज़ल से है अब भी हो और अब्दुल अबाद रहे। हालेलुया। ये है खुदावंद की एक लेसन। खुदा कहता है अगर तुम्हें कोई ठोकर भी खानी पड़ती है, ठोकर के नीचे आते हो, तो उसके लिए खड़ा भी मैं ही आपको कर सकता हूं। कोई हुक्मरान, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई आपको नहीं, बल्कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वो अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ है बेअब करके तुम्हें क्या कर सकता है? खड़ा कर सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज अगर हम भी कहते हैं खुदा का गुनाह, यानी एक ऐसे जो गुनाह है जिनकी डायरेक्ट मौत हो जाती, और ऐसे गुनाह जो खुदा को पसंद नहीं, जिस तरह खुदा के कलाम में है उसकी शरीर यानी जिसे कहा जाता है कि उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाती। तो मेरे अजीजों, हमें उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अगर हमें कोई ठोकर खिलाता है और हमें, तो खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है ऐ बच्चों तुम उस चीज़ों से यानी उन बातों से क्या करो? बचो, उन फरेब से बचो। और मेरे अजीजों, हमें खुदा का बंदा आज यही सिखाता है कि अगर हम मसीह से पैदा हुए यानी खुदा से हैं, तो हमारे अंदर ये कलाम होना चाहिए। हमारे अंदर जिसके अंदर ये कलाम है वो कोई भी गुनाह करते वक्त सोचता है कि खुदा ऊपर है, खुदा देख रहा है, खुदा जानता है, खुदा के कलाम में ये लिखा है, ये लिखा है। लेकिन जिसकी तरबियत इसके वसीला से नहीं है वो जो मर्जी कर देता है। ये सिंपल सी बात। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात सब बोले।